So today in today's class, we are going to touch a new topic, and it will be related to your C4 spreading, continental drift theory, and later on we will move to the plate tectonics theory. So all these important topics will be covered in today's class. Most probably we will be touching continental drift theory first, and then later on we will move to seafloor spreading theory. And in tomorrow's lecture, or means the next lecture, we will look into plate tectonics theory in detail. So let's start with the share of screen. So this is our let me off my camera, otherwise I won't be able to write on my tab. Is it fine if I stop my camera? What do you people say? Okay. Okay, thank you. So this is all about continental drift theory. So continental drift theory is all about continental drift theory. Okay. So continental drift theory is talking about, there are three words. If you see, first is continental, second one is drift, and then theory. So this is talking about continents. We all know continents. क्या है continents? महाद्वीप. ठीक है. Drifting मतलब क्या हो गया? बहाव. Means in another word we can say movement. So drifting is movement. कई बार आपने सुना होगा वर्ड, हम कई बार यूज करते हैं ड्रिफ्ट लगाना. तो कई बार व्हीकल्स के, बाइक्स के कॉन्टेक्स्ट में हम कई बार बोल देते हैं इसने ड्रिफ्ट लगाई. ड्रिफ्ट क्या किया उसने? मूवमेंट किया, सडन मूवमेंट किया, तो वो ड्रिफ्ट कहलाती है. ठीक है. तो ये जो कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट के बारे में जो बातचीत हुई, वो किसने स्टार्ट किया था, किसने किया? वो हमारे वैगनर एक साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे. ठीक है. उनका नाम था अल्फ्रेड वेबर. Wagner. So he had propounded this theory. So let's talk about it. So continental drift theory, the name was Alfred Wegener. So this name is important because many a times different scientists are asked in the exams that who was the propounder of which theory. So that's why it is important. So he was from German origin. So this scientist in 1915, he propounded this theory. Before that, there were many scholars who were talking about various aspects of continent. Because if you go into the past, then you will find that Homer, Hesiod were there, and then some Greek scholars like Eratosthenes, who came and into 2nd BC. Eratosthenes, he measured the circumference of the earth for the first time. And before Eratosthenes, all the scholars used to think that earth is flat. Okay. So earlier this concept was there, earth is flat. So when Eratosthenes in 2nd BC measured the circumference of earth, and he also propounded that earth is not flat, rather it is in spherical form. And then further he also calculated the radius of the earth, the whole diameter of the earth. And that was the very important innovation, you can say in other ways. And after that, many other scholars came who also propounded various other types of
theories regarding the Earth. But until 18th century, nobody was able to tell that what is there inside our Earth. We all were there. We used to sit on the Earth. We used to tread on the Earth, but we were not able to tell that these Earth, different continents, whether there are some movements within them or not. So during this period of time, when different other scholars, they started talking about the interior structure of Earth. Then, like Arthur Holmes, you must have heard, who had propounded, who had given the chemical composition of different layers of the Earth. Then he was talking about Sial, Sima, and Nife. So he told about that there are three layers of Earth: Sial, Sima, and Nife. And beyond that, then there were other many scientists who were talking about the composition of that. That they were very much inquisitive that what is found beneath the Earth. If this is the layer of Earth, mean lithosphere layer. So what is below this lithospheric layer? Nobody was able to tell. And then we also know that due to the innovations of seismic wave, or you can say the recognition of seismic wave, when seismograph was developed, so after seismograph, we could uh, recognize, we could measure, we could identify the seismic waves. And this was the time when we came to know that within the Earth, it is not just about Sial, Sima, or Nife, rather, there are different layers of the Earth. And this was the time when we came to know that if we are talking about lithosphere, so below the lithosphere, there is some other sphere also that is known as asthenosphere. And this asthenosphere is not in a very solid state or in a very liquid state. Rather, asthenosphere is found in a little bit molten plastic type of layer. So this is thick, but it is not totally solid, and also it is not totally liquid, whereon anything can flow like water. So the lithosphere floats on the molten plastic layer of asthenosphere. That was the recognition, innovation that came quite late. So when we are talking about the continental drift theory, it was Alfred Wegener who is given the credit for the idea that the continents are drifting. Before that, nobody was able to tell that it could happen that if we are looking at continent of North America, continent of South America, continent of Asia. So generally, it is expected by us, if we do not know any other thing, other innovations, then we can just assume that these are static. They are not in movement. But this was the watershed moment when continental drift theory was put forward by Alfred Wegener, that continents are drifting. Okay, so this was very significant innovation. But when we look at this theory as a whole, whatever premises that have been given in continental drift theory, then you will find that many evidences, many other arguments that have been given in theory were not absolute, or we were that those arguments, those evidences were not uh, abound. There were several mistakes or several um, possibilities of you can say like questioning the ideas, questioning the evidences of continental drift theory, which was put forward by Alfred Wegener. So one by one, we will look at it, at what were the evidences, what were the arguments of Alfred Wegener behind this theory, and then what happened when he had propounded this theory, what was the reaction of different other scholars, and if there were some criticisms regarding this theory, then what were those criticisms regarding this theory. All these things will be studied within this topic. So
According to this continental drift theory, it is being said that part of the crust are capable of horizontal movement. ठीक है, जो crust है हमारी भूपर्पट्टी जो है, that is capable of horizontal movement. ये इस तरीके से क्षैतिज रूप में घूमती है, मूव करती है, इस दिशा में भी जा सकती है, इस दिशा में भी जा सकती है, राउंड द ग्लोब, पूरी पृथ्वी पर, causing the continents to slowly change their positions in relation to each other. एक दूसरे के कनेक्शन में, एक दूसरे के संदर्भ में जो अलग-अलग हमारी प्लेटें हैं, जो हमारी कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपीय प्लेटें हैं, वह घूमती हैं, ठीक है? वो अपनी जगह पे स्थिर नहीं है। ये बात किसने कही? अल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ कही। So the fact that South America is a mirror image of Africa, अगर आप इन दोनों देशों का मैप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलेगा। तो उन्होंने एक प्रूफ दिया इसका, ठीक है? इसका एक एनिमेशन वीडियो भी है, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। तो उसमें इन्होंने प्रूफ दिया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ये जो दोनों देश हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, ठीक है? अभी आगे देखेंगे। तो ये आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए, ठीक है? इससे पहले जब पूरी पृथ्वी जुड़ी थी, जब पृथ्वी बनी, सो उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे हम बोलते हैं कि पूरा एक साथ जो ये पूरा पृथ्वी का बड़ा भूभाग था, वो सब एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है? सिर्फ एक समुद्र था और एक पृथ्वी थी, कॉन्टिनेंट्स थे, महाद्वीप था। जो एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, इसका नाम था पेंजिया। जो एक बहुत बड़ा समुद्र था, उसका नाम था पेंथलासा। तो पेंथलासा और पेंजिया, सिर्फ यही दो चीज थी पृथ्वी पर पहले, और उसके सॉरी फॉर द पॉज। सो व्हाट वाज देयर? पंथलासा एक बहुत बड़ा समुद्र था, पेंजिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, ठीक है? और बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे, लगभग 200 मिलियन साल पहले, धीरे धीरे ये टूट कर अलग अलग भागों में जाने लगा, ठीक है? तो पहले क्या हुआ? दो भागों में टूटा, ठीक है? जो उत्तरी भाग था उसका, उसे बोला गया लॉरेशिया, ठीक है? और जो साउथ वाला पार्ट था, वो कहलाया गोंडवाना लैंड, ठीक है? ये गोंडवाना लैंड, एडवर्ड स्वेस एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम दिया था गोंडवाना लैंड, ठीक है? तो ये दोनों टूटने के बाद, ठीक है, और फिर जो है इनमें भी जो दो बड़े बड़े खंड टूटे, उनमें से भी फर्दर और जो है डिविजन्स हुए, और आज जो हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स की हम बात करते हैं, तो वो कॉन्टिनेंट्स आज के अस्तित्व में आए, ठीक है? तो जो साइंटिस्ट हैं, वो इस टूटने को और अलग अलग जगह आज की स्थिति में स्थापित होने को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, ठीक है? महाद्वीपों का बदलना।
भाव होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा जो था, एक कह सकते हैं इनोवेशन था, एक बहुत बड़ा आइडिया था। और इसके बारे में काफी ज्यादा लोगों ने फिर बातचीत शुरू की। और जो बातचीत शुरू हुई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि लोगों ने कहा कि ये आइडिया जो दिया है वो क्यों दिया है, उसके सही और उसके गलत के बारे में काफी लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट जो है वर्ड शब्द आपका, ड्रिफ्ट को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन भी इसको बोल देते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन। थ्योरी लगा दोगे तो उसको सिद्धांत बोल दोगे, महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, तो ये बस यही है कि जो आज की जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो जल है और स्थल है, उसका जो भी वितरण है वो कैसा दृष्टिगोचर होता है हमें, कैसे आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब अलग अलग था, तो वो इसके ऊपर ये सब बातें हमारी रहती हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। तो पहला आप देखिए कि 225 मिलियन साल पहले किस तरीके से पेंजिया ये पूरा बना हुआ था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, सर हिंदी का फिर पीडीएफ जो है, हाँ जी, हेलो सर, हाँ हिंदी जी वाला बोलिए ना। पीडीएफ एक बार पीडीएफ थोड़ा रोक दीजिएगा, हिंदी का पीडीएफ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ओके जी। हम्म, तो इसमें जो है आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम है आपका पेंजिया का। दूसरा क्या हुआ, इस पेंजिया में जब टूटन हुई तो एक खंड बन गया लोरेशिया और एक खंड बन गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर लगभग 100 मिलियन साल पहले इस तरीके से ये बन गया। आज का आकार लगभग लगभग ले लिया। यहाँ पर आप देखिए अगर, तो इंडिया कहाँ पर है अभी, अभी भी ये दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ हेमिस्फीयर में है। और फिर इंडिया का मूवमेंट भी इस दिशा में हुआ था और यहाँ से इस दिशा में इनका मूवमेंट रहा, और बाद में चल के इंडिया का जो ये पार्ट है ये इससे यहाँ जाके जुड़ गया और यहाँ इंडिया हमारा बन गया, इस आज करंट जो स्थिति है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आज की पृथ्वी है। तो इस तरीके से इनमें विस्थापन हुआ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर, ये इस तरीके से बन गए। तो अब थ्योरी में बात आती है कि थ्योरी में जब उन्होंने बोला कि विस्थापन हुए तो विस्थापन क्यों हुए, उनके पीछे ताकतें कौन कौन सी थी। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने बात की कि कौन कौन से बल हैं वैगनर के अनुसार जो दिशा में बहाव हुए, वो कौन कौन से बल हैं। ठीक है, तो उसमें पहला एक आता है बल, वो ये बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का। तो उन्होंने बोला क्योंकि जब पृथ्वी है तो उस पे क्या हो रहा है, उसके जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं जो उसके नॉर्थ में और साउथ में दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, यहाँ की वजह से, इन बलों में अंतर आने की वजह से क्या हुआ, कुछ कॉन्टिनेंट टूटे। और दूसरी फोर्स का उन्होंने नाम लिया, उसे बोलते हैं पोल फ्लीइंग फोर्स। ठीक है, ध्रुव की तरफ भागने वाला बल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, तो जब ये पृथ्वी घूमेगी तो घूमने की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज कभी जैसे आप घूमो, खुद घूमो किसी बच्चे को लेके, उसके हाथ पकड़ के कई बार हम गोल गोल घूमते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चा नीचे से जमीन से उठ जाता है ना, और उठ के ऐसे स्ट्रेट क्षैतिज रूप में ऊपर आ जाएगा, आपको जब घुमाएंगे तेजी से। तो वो किस कारण से होता है, एक बल कहलाता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये फैलता है। तो एक केंद्र प्रसारक बल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पदार्थ किसी सेंटर पे अर्थ के पास है, इक्वेटर के पास है, आपके भूमध्य रेखा के पास है, वो पोल की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्होंने बोला, वैगनर ने बोला कि जो महाद्वीप थे वो टूट गए और टूट के अलग अलग दिशा में चले गए, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ अलग दिशा में चले गए। ठीक है, और एक और फोर्स का उन्होंने नाम बताया था, फोर्स ऑफ बायंसी। बायंसी का फोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा समझ लो कि कोई पदार्थ है, कोई पानी है, कोई ऐसा तरल पदार्थ है,
और उसके ऊपर कोई जब हल्की चीज रखी जाती है तो वो उसमें डूबती नहीं है, वो उसमें तैरने लगती है। वो इसलिए तैरने लगती हैं क्योंकि जो नीचे वाला स्थान है, पानी है, उसका घनत्व ज्यादा है, और जो आपने उसके ऊपर कुछ भी सामान रखा उसका घनत्व यदि कम है तो वो उसके ऊपर तैरेगी। उसको बोलते हैं बायंसी। ठीक है, बायंसी का मतलब होता है तैरना। तो जैसे कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कोई समुद्री जहाज पानी में तैरता है, वो इसलिए तैरता है क्योंकि पानी का जो बायंट फोर्स है, ये बल उसको ऊपर की तरफ तैरा देता है, उसको नीचे डूबने नहीं देता है। ठीक है, उत्प्लावन बल बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारी प्लेट हैं, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स थी वो तैरी, उसके ऊपर ही रही और वो घूमी, टूट के अलग अलग दिशाओं में चली गई। ठीक है, अब ये अलग अलग दिशाओं में जो गई, उन्होंने सभी दिशाओं की बात नहीं की। उन्होंने बोला कि एक तो पोल की तरफ गई और एक जो है वेस्टवर्ड गई, वेस्टवर्ड पश्चिम की तरफ। जो टूटने के बाद उन्होंने बोला कि टूटी और ये पश्चिम दिशा में चली गई। ठीक है, वो पश्चिम दिशा में क्यों गई, उसके लिए उन्होंने बताया टाइडल करेंट्स, कि जो आपका जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा की वजह से उनमें प्रेशर लगा और वो टूट के पश्चिम दिशा की तरफ भी मुड़ गई। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने बोला कि पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये ऐसे घूमी और टाइडल करंट चंद्रमा की तरफ से जो आपका आया, उसने इनको इस तरफ से घुमा दिया। जो कॉन्टिनेंट थे, पृथ्वी इधर की तरफ घूमी तो इधर की तरफ छिटक के इधर की तरफ चले गए, पश्चिम दिशा की तरफ। ये वैगनर ने बात बोली। तो इसमें आपने कौन कौन सी फोर्स देख ली, एक आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी देखी, एक आपने पोल फ्लिंग फोर्स देखी, पोल फ्लिंग फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही एक पार्ट है। ठीक है, और आपने फोर्स ऑफ बायंसी देखी। ठीक है, चौथी आपने टाइडल करंट्स की फोर्स देखी। तो ये चार ताकतें, चार बल, ठीक है, ये चार बल बताए किसने, वैगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर, जिसके कारण से ये कॉन्टिनेंट अपने स्थान से अलग हट गए, अलग जगह पे पहुंच गए, दूसरी दिशा में पहुंच गए। इन चारों बलों का आपको याद रखना है, बहुत बार इसके ऊपर प्रश्न बन जाते हैं। कौन से ऐसे ऐसे बल हैं जिनकी वजह से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करे, जिनको वैगनर ने अपनी थ्योरी में डाला है। ठीक है, तो वैगनर ने जो टाइडल फोर्स बताई थी, ठीक है, तो टाइडल फोर्स ज्वार भाटा यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है, ज्वार भाटा में जो समुद्र है उसका पानी चंद्रमा की ओर जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा की ओर, चंद्रमा अपनी फुल उसमें होता है, खुल आप सामने पृथ्वी के, तो वहां पर वो एक गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करता है और वो पानी को अपनी तरफ, जल को अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसे अगर ये हम जब अभी ओशनोग्राफिक का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये चंद्रमा है, तो अगर यहाँ पर चंद्रमा इस दिशा में है तो यहाँ जो समुद्र का पानी है वो थोड़ा सा खींचेगा, किसकी तरफ, चंद्रमा की तरफ खींचेगा। तो जहां पर खींचेगा वहां थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ पर ज्वार आ जाएगा, और जिस दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा, दूसरी डायरेक्शन में कम हो जाएगा पानी वहां से, वो भी क्योंकि इसकी तरफ ही आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ पर भाटा आ जाएगा। तो ये ज्वार और भाटा कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इस ज्वारीय कारण से उन्होंने बोला कि जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट थे वो टूट के पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। ठीक है, तो ये सारी जो अलग अलग बल हैं उनके बारे में जो मैंने भी आपको बताया वही इसमें लिखा हुआ है। समझने के लिए आप आगे और समझ लीजिएगा। तो ये हो गए बल। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करे वास्तव में किए नहीं किए, उसके पीछे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। कि जब थ्योरी देते हैं तो उसमें आप कुछ भी अगर आर्गुमेंट देते हैं तो आर्गुमेंट के सपोर्ट में आपको कुछ प्रूफ देने होते हैं कि सच, अगर मैंने कुछ भी बात बोल दी तो वो साइंटिफिक नहीं होगी। कुछ भी बात कह दी तो मैं उसकी थ्योरी नहीं बना सकता। यदि मैं कुछ कहता हूँ तो मुझे अपनी बात को, तथ्यों को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ प्रमाण भी देने पड़ेंगे। तो क्या क्या प्रमाण हैं इस थ्योरी को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए, जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने दिए, उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है जिग्सा फिट। कहीं ना कहीं आ रही होती है ना, तो
आरी क्या होता है ना, आरी बनी हुई है और इसमें ऐसे दांते बने हुए होते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से बना है। और ऐसे ही अगर मैं नीचे कोई दूसरी आरी बना दूं, और इन दोनों आरियों को एक मिला दूं, दोनों के दांते एक दूसरे में फंस जाएंगे तो एक साथ जुड़ जाएंगे। और अगर हटा दें तो फिर ऐसा लगेगा कि ये दोनों कभी एक थे और इनमें से ये अलग हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसको जिक्सा फिट बोलते हैं। हिंदी में भी इसको जिक्सा फिट ही कहा जाता है। आरा फिट मत लिखिएगा, जिक्सा फिट। ठीक है, तो जिक्सा फिट के बारे में बता के उन्होंने कहा कि जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों की तट रेखाएं आपस में मिलती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने क्या बताया, उदाहरण के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका अमेरिका का ब्राजील वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और अफ्रीका का जो महाद्वीपीय पश्चिमी तट है, ये जो हिस्सा है, तो उन्होंने बताया है कि ये दोनों आपस में मिला दो तो एक जैसा लगता है कि एक जगह थे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लगता भी कुछ कुछ ऐसा ही है। ये देखो कि इसमें इसको फंसा दो, एक दूसरे से लगा चिपका दो, तो ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये लगता है इसका ही टुकड़ा एक होगा कभी, और इसी से ये टूटा होगा। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया और बताया कि ये जिक्सा फिट है। तो इस पे जब उन्होंने, क्योंकि जियोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने इसकी दोनों की तटरेखाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। तो उन्होंने बताया कि अगर ये जो बीच में जगह भी दिख रही है, अगर दोनों की कोस्ट लाइन, ये वाला जो पोर्शन है, इसको भी अगर नीचे समुद्र की थोड़ा गहराई में भी जाए, उसको भी मिला दो, जोड़ दो एक साथ, तो ये सारा एक साथ जुड़ जाएगा, पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे पास कहने के लिए कि कभी ये एक साथ थे और आज ये अलग हो गए। तो पहला प्रमाण जिक्सा फिट का हमें देखने को मिलता है, जो कि वैगनर ने बताया है। दूसरा उन्होंने बताया जियोलॉजिकल फिट। ठीक है, भूवैज्ञानिक फिट, कि भूवैज्ञानिक रूप से भी ये एक साथ हैं। ठीक है, एक साथ जुड़े हुए हैं, इनमें भी आपस में काफी ज्यादा साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे के साथ हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि जियोलॉजी ऑफ ईस्टर्न साउथ अमेरिका, जो साउथ दक्षिणी अमेरिका है उसका पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग, अगर आप उसको पूरा मैप करें और इन दोनों की चट्टानों के बारे में पढ़ें तो 2000 मिलियन साल पहले, तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही कॉन्टिनेंट के पार्ट थे और आज टूट के अलग हो गए। ठीक है, तो इसमें क्रेटन्स जो है, रॉक आउटक्रॉप्स, जो रॉक के कुछ भाग हैं, वो कहीं ना कहीं देखो, ये इन्होंने जो इसमें गाढ़े रंग के निशान बनाए हुए हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं ये भी दर्शाते हैं, जैसे कि ये टुकड़ा है तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इसमें उसको मिला दो तो उसका भाग ऐसे मिल जाएगा। यहाँ ये इस तरीके से है, यहाँ ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दो तो ये भी जो है एक साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जियोलॉजिकल फिट की बात भी की। एक जिक्सा फिट हो गया और एक जियोलॉजिकल फिट हो गया, ये भी एक उन्होंने प्रमाण दिया अपनी थ्योरी के सपोर्ट में। एक टेक्टोनिक फिट की बात की उन्होंने। तो टेक्टोनिक फिट में उन्होंने बोला कि कुछ टुकड़े जो हैं, जो फोल्ड माउंटेन है, वलन की वजह से जो पर्वत बने हैं, वलित पर्वत जो हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप 450 मिलियन साल पहले देखें तो उनमें भी जो है वो एक दूसरे देश से अलग इस तरीके से हुए हैं। तो यहाँ पर बाल्टिका है, लोरेशिया है, इनके बीच में आप ये, इन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं, एकेडियन जो है, मिड यूरोपियन कैलेडोनियन जो पहाड़ हैं, स्कैंडिनेवियन पहाड़ हैं, ग्रीनलैंड के जो कुछ पहाड़ हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पीसेस ऑफ कैलेडोनियन फोल्ड माउंटेन बेल्ट आर फाउंड इन ग्रीनलैंड, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड स्कैंडिनेविया। तो अब ग्रीनलैंड कहाँ है, आज कनाडा कहाँ है, आयरलैंड कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, स्कॉटलैंड कहाँ है, स्कैंडिनेविया कहाँ है, सब बहुत दूर दूर हो गए, लेकिन इनमें एक जैसी सिमिलरिटी इनके अंदर देखने को हमें मिलती है कि ये सब इसी काल के कैलेडोनियन फोल्ड माउंटेन के टाइम के ही हैं।
ठीक है। तो ये कहते हैं कि जब बहुत बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को रीअसेंबल करते हैं माउंटेन के रूप में, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके का एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है कि ये सब एक साथ ऐसे थे और आज टूट के ये सब अलग अलग हो गए इन देशों के। ठीक है। तो तीसरा प्रमाण हो गया टेक्टोनिक प्लेट का। फिर चौथा प्रमाण था ग्लेशियल डिपॉजिट का, कि उन्होंने बोला कि ग्लेशियर्स भी थे इन सब जगहों पे पहले। ठीक है। और वो ग्लेशियर्स के जब ग्लेशियर होते हैं तो ग्लेशियर क्या करते हैं, वो भी पहाड़ों के ऊपर जहाँ भी हैं जमे हुए वो भी फिसलते रहते हैं, पिघलते हैं, और अपने साथ साथ जो भी चट्टाने हैं उनको तोड़ते भी हैं, काटते भी हैं, उनका अपरदन भी करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्लेशियर का पार्ट है उसका कुछ डिपॉजिट पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो हिम नदी का जमाव। ठीक है। तो हिम नदी का जमाव भी जो है वो हमें देखने को मिलता है कब के टाइम का, परमो कार्बोनिफेरस टाइम का मिलता है, जो कि 300 मिलियन साल पहले का। अंटार्कटिका में मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, इंडिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। आज आप अंटार्कटिका देखें तो वहां पर तो बहुत पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन उस समय पे और आज आप अगर इंडिया को अफ्रीका को देखें तो वहां थोड़ी कहीं इस तरीके की बर्फ मिलती है देखने को। ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को नहीं मिलती है, साउथ अमेरिका में कुछ पार्ट में देखने को मिलती है ज्यादा नहीं। लेकिन तब जो है ये बोलते हैं कि इस तरीके के ग्लेशियल डिपॉजिट हमें इन सभी कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कभी ना कभी ये सब एक साथ होंगे, इसीलिए जब टूट गए तब भी इतनी दूर दूर होने के बाद भी इनमें इस तरीके के ग्लेशियल डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो आज इक्वेटर के पास है हमारी पृथ्वी, हमारा भारत, वहां पर कहाँ आपको ग्लेशियर मिलेगा? साउथ साउथ इंडिया में आज तो वहाँ गर्मी होती है। ठीक है। तो कहते हैं कि इफ कॉन्टिनेंट्स हैव नॉट मूव देन दिस वुड सजेस्ट एन आइस शीट एक्सटेंडेड फ्रॉम द साउथ पोल टू इक्वेटर एट दिस टाइम। अगर ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए होते तो ऐसा होता कि साउथ दक्षिणी ध्रुव से लेके पूरे भूमध्य रेखा तक बर्फ ही बर्फ पड़ी होती, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे जो इंग्लैंड था वो इक्वेटर के पास था, और वहां पर इसी कारण यहाँ पर काफी ज्यादा कोयला और लाइमस्टोन के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। ये चौथा उनका एक प्रमाण था। इस तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये ग्लेशिएशन का एक डायग्राम है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये सब जुड़े हुए थे एक साथ। और यहाँ पर क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ जमी हुई थी और आसपास के जो क्षेत्र थे इनमें भी इतनी इतनी दूरी में बर्फ जमी हुई थी पूरी। तो यहाँ से हमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और आज जो है ये इतने बड़े बड़े सब देश अलग अलग हो गए, इतनी दूर तक पहुंच गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो सब इस तरीके से थे। फिर एक और उन्होंने इसका उदाहरण दिया, पांचवा, जिसे बोलते हैं फॉसिल एविडेंसेस। ठीक है। तो ये जीव जंतु के अवशेष से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि अलग अलग महाद्वीपों में जीव जंतुओं के अवशेष एक जैसे प्राप्त हुए। तो इसलिए ये सिद्ध करता है कि उस समय में भी जीव जंतु साथ रहे होंगे, और इसी कारण से जब विस्थापन हुआ बाद में तो इनके अवशेष हमें अलग अलग स्थानों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने इन जीव जंतुओं के नाम दिए हैं, जैसे कि साइनो साइनोग्नेथस है, एक है मेसोसोरासिस है, एक ये वनस्पति है ग्लोसोपेट्रिस, और एक रेप्टाइल की तरह था जैसे डायनासोर उस तरीके का लिस्ट्रोसोरस। तो ये उन्होंने इस डायग्राम में दिखाया है कि कैसे ये कलर के साथ आपको दिखाया हुआ है कि इतनी दूरी में इसके अवशेष देखने को मिलते हैं, इतनी दूरी में इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। इस तरीके से रंग के आधार पे इन्होंने बताया। तो कहीं ना कहीं इनके आधार पे उनका यही कहना है कि ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे, तो पूरे में ये जानवर टहलते थे, और बाद में जब ये टूट गए तो ये जानवरों के अवशेष यहाँ रह गए। लेकिन क्योंकि अब इतने बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं ये तो इतने समुद्र को लांघ कर तो नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है कि कभी एक साथ ही होंगे, और इसी कारण से ये इस तरीके से बन गए। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट नहीं होते तो उसके अलावा फिर क्या हो सकता था कि जितनी भी स्पीसीज हैं ये अपने आप से इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अपने अलग अलग
कॉन्टिनेंट्स पर, महाद्वीपों पर बढ़े, पैदा हुए और बढ़े। तो अगर ऐसा होगा तो फिर डार्विन ने जो थ्योरी दी है इवोल्यूशन की वो फेल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। और दूसरा उन्होंने दिया कि या तो फिर जब इतनी दूर दूर में एक जैसे अवशेष मिलते हैं तो वो तैरे होंगे और तैर के एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचे होंगे, ठीक है। तो जानवर भी ऐसे नहीं है इतने भारी भरकम कि ये समुद्र तैर कर अंटार्कटिका से इंडिया पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब एक साथ जुड़े हुए होंगे और इसीलिए एक दूसरे इतनी बड़े क्षेत्र में ये सब इनके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हो गया जीवाश्म का प्रमाण, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने बात करी और उसके बाद कहने के बाद उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। उन्होंने ये सारे उदाहरण दिए, साक्ष्य दिए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने चट्टान देखे थे, चट्टानों के बारे में भी ये था कि एक साथ जुड़े हुए हैं। एक और था इनका, उसमें उन्होंने एक एविडेंस दिया था, तो वो था क्लाइमेट का, जो ग्लेशियर वाले मैंने जैसे बताया आपको, ग्लेशियर वाला एविडेंस। तो ये इसमें ये बताते हैं कि जो विश्लेषण जब इन्होंने किया वैगनर ने, तो विश्लेषण से उनको पता चला कि जो भी विश्वसनीय क्षेत्र हैं वहां पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, हिमाच्छादन देखने को मिल रहा है। हिमनद जदी जमा की जगह इसको आप ऐसे लिखें, हिमाच्छादन हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो पुराने समय में महाद्वीप दक्षिण में रहे होंगे और विस्थापन के दौरान इनका प्रभाव जब विषुवतीय क्षेत्र की तरफ हुआ होगा तो तभी जो है हमें इस तरीके के हिमाच्छादन वाले क्षेत्र जो है हर जगह पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उनके विचार था कि जो क्रिटेशस का समय था, क्रिटेशस इरा था, तो उस समय में चंद्रमा की उत्पत्ति से भारत पृथ्वी का क्या हुआ, पृथ्वी की जो घूर्णन की गति थी वो तेज हो गई, ठीक है। और उसके साथ ही चंद्रमा की ज्वार शक्ति भी बढ़ी। तो जब ज्वार शक्ति बढ़ी तो फिर जो महाद्वीप जो अपने स्थान से जब बह के चलने लगे तो वो टूट के पश्चिम दिशा में बहने लगे। एक ध्रुवों की तरफ से आपके क्या कहते हैं भूमध्य सागर की तरफ गया, इक्वेटर की तरफ गया, और दूसरा वेस्ट साइड में मूवमेंट किया। ये मूवमेंट उन्होंने दो दो दिशा में उनका विस्थापन का बहाव उन्होंने जो बताया था ये बताया, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि जो विषुवत रेखा की ओर जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, इक्वेटर की तरफ जब विस्थापन हुआ, तो हमें जो पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे आल्प्स पर्वत है, कोकेशस पर्वत है, हिमालय है, इन सभी अलग अलग पर्वतों की श्रृंखलाएं बनी। और जो पश्चिम का जब बहाव हुआ तो पश्चिम के बहाव में हमें आज रॉकी पर्वत जो देखने को मिलता है, एंडीज पर्वत देखने को मिलता है, उनका निर्माण हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार, क्योंकि जो अल्फ्रेड वैगनर थे ये काफी बड़े एक मौसम विज्ञानी भी थे, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट। तो ये काफी बड़े मीटियोरोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। तो जब उन्होंने पृथ्वी के जलवायु संबंधी परिवर्तनों का भी जब अध्ययन किया तो वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी पर जलवायु का भूतकालीन वितरण भी वर्तमान कार्य से भिन्न था, थोड़ा अलग था, ठीक है। तो इसीलिए जब उन्होंने बताया कि जो ध्रुव क्षेत्र है अंटार्कटिका में कोयले का पाया जाना क्या है, क्योंकि कोयला जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, ठीक है ना। इनमें निकलता सेडिमेंट्री रॉक्स में कोल हमें देखने को मिलता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपको अगर अंटार्कटिका में इसके साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं, कोयला मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कभी ये ऐसी जगह पे रहा होगा जहाँ पर हिमच्छादन ज्यादा नहीं हुआ होगा, बाद में ये इस तरीके से आया, ठीक है। हमें मध्य जो यूरोप है वहां भी कई बार देखने को मिलता है, अमेरिका के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्लेशियल ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। राजस्थान के जो मरुस्थल है वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ वो मिलते हैं, ग्लेशियर के डिपॉजिट मिलते हैं। तो अगर इस मैप को मैं बड़ा करूँ तो देखो ये राजस्थान वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर भी ग्लेशियर दिखाया हुआ है। तो ये कहाँ से होगा ग्लेशियर, आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ ग्लेशियर के साक्ष्य मिलना बड़ी अजूबा वाली स्थिति होती है। तो उनका भी इसीलिए ये भी एक प्रमाण था कि ये सब एक साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो दो स्पष्टीकरण हमने देख लिए इसके अंदर, ठीक है, इनका, कि एक तो यह है कि आप ये मान लें
कि महाद्वीप अपने स्थान पर स्थिर रहे, और उनमें क्या हुआ, जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हो गया। कि आज जो जलवायु कटिबंध हम पढ़ते हैं ना, कि विषुवतीय कटिबंध है, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है विषुवतीय कटिबंध। फिर ऊपर आप जाएंगे तो आपको उष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, ठीक है ना, और फिर शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग कटिबंधों में परिवर्तन हो गया, एक तो ये कारण है। और अगर जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे तो फिर तो महाद्वीपों का ही स्थानांतरण होता रहा होगा, कि वही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित या विस्थापित होते रहे होंगे। तो इन दोनों जो विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किए थे, उनमें से सीधी सी बात है कि जो आपके महाद्वीप अपने स्थान पर रहें, ये मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन होना इतना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो सारे भूभाग हैं, यही सारे के सारे मूव कर रहे थे, घूमे हैं, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ गए हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला कि जो आज पेंजिया है, हमने पेंजिया की फोटो देखी थी, तो ये जो पेंजिया है, उन्होंने बताया था कि ये पेंजिया की स्थिति ऐसी थी कि दक्षिणी ध्रुव जो है, वो आज के अफ्रीका के दक्षिण के जो दक्षिण में एक नेटाल एक जगह है, तो वहां पर था। दक्षिणी ध्रुव कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलता था, साउथ पोल था ये। तो इसीलिए यहाँ पर बर्फ पड़ती थी इसके आसपास के क्षेत्रों में, जो आगे अपने फोटो देखिए, ठीक है। और बाद में उत्तर और ध्रुवों का विस्थापन हो गया। ये भी यहाँ पर साउथ की तरफ, यहाँ पर साउथ पोल आ गया, और जो नॉर्थ पोल था वो यहाँ की तरफ आ गया। नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो कहीं ना कहीं दक्षिणी और उत्तरी ध्रुवों का भी विस्थापन हुआ जब पेंजिया का प्रवाह हुआ, ठीक है। और जब फिर आपके पूरा ये जो है पुराजीवी महाकल्प के उत्तरार्ध में, जब कार्बन युग आया, कार्बोनिफेरस एज जो आती है, उसके एंड में जब पेंजिया टूटने लगा, तो फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स थे वो टूट के अलग अलग जगह पे चले गए, ठीक है। तो ये हमें इन्होंने बताया। अब हमें इसके साथ साथ देखना है कि जब इन्होंने सारे एविडेंसेस दे दिए, प्रमाण दे दिया, क्या क्या प्रमाण थे वो सब बता दिए, तो उसके आधार पे लोगों ने क्या कहा, जो बाकी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पढ़ी, तो उस थ्योरी के अंदर अलग अलग अन्य वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, हम उसके बारे में, ठीक है। तो वैगनर जो है, अब इसमें जो क्रिटिसिज्म उन्होंने फेस किए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उनकी आलोचना की। तो किन किन आधारों पे आलोचना हुई, उन आलोचनाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला जो उनको आलोचना मिली वो ये था कि वैगनर ये बताने में, समझाने में असमर्थ रहे कि ड्रिफ्टिंग जो स्टार्ट हुई महाद्वीपों का, वो मेसोजोइक इरा में ही क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, उससे पहले क्या कारण थी कि नहीं हुई, अचानक से क्यों उसी मेसोजोइक इरा में टूटने लगे, तो ये नहीं बता रखा। दूसरा इन्होंने जो नहीं बताई बात, कि उन्होंने समुद्रों के बारे में कोई बात नहीं की। जहां भी बात कर रहे हैं वो महाद्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं। महाद्वीपों पे साउथ पोल था, नॉर्थ पोल था, गर्मी थी, सर्दी थी, जीवाश्म थे या नहीं थे, कोयला था या नहीं था, हिम नदी का जवाब था या नहीं था, है ना। महाद्वीप की बात कर रहे हैं, समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आलोचना का एक पार्ट हो गया, इतना बड़ा समुद्र है पृथ्वी पर, उसकी बात नहीं। जो उन्होंने सिद्धांत दिए वो सिर्फ अजम्पशंस पे हैं, उन्होंने मान लिया कि ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा। बहुत ठोस आधार नहीं मिले, ठीक है, कि एग्जैक्ट हर एक जगह के बारे में जब बात करें तो आपको वो सारे उदाहरण नहीं मिलते। कुछ कुछ के पॉइंट उठाए, जैसे कि जब उन्होंने जिग्सा फिट दिया, तो जिग्सा फिट के अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात कर ली, बाकी देशों की बात नहीं की, हर जगह की। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने जो बात की बायनेंसी बल की बात की,
है ना, ज्वारीय बल की बात की, गुरुत्वाकर्षण की बात की, और बोला कि इन बलों की वजह से जो बड़े बड़े महाद्वीप थे वो टूटे और टूट के विस्थापित हो गए। तो ये जो बल हैं ये इतने बड़े नहीं हैं, इतने मजबूत, इतने ताकतवर नहीं है कि ये बड़े बड़े महाद्वीपों को अपनी जगह से हिला दें। अगर ऐसा हो पाता तो आज भी इनकी वजह से बहुत ज्यादा हिल रहे होते। तो ये भी एक उनका आलोचना का एक उदाहरण कारण बना। ठीक है, तो जो आज की थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम लेते हैं, जिनमें कि हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का नाम लेते हैं, कन्वेक्शन करंट थ्योरी का नाम लेते हैं, तो ये जो थ्योरी है ये तो मानती है कि हाँ कभी पेंजिया रहा होगा, ठीक है, और वो टूटे भी होंगे, उनमें विस्थापन भी हुआ होगा। लेकिन विस्थापन क्यों हुआ होगा, उसके जो कारण रहे होंगे वो काफी एक अलग बात है। उसके ये कारण नहीं बताए गए जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1915 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर दी। ऑल दोज evidences were cast by different scientists and they had given a different explanation about the different drifting of different continents. So that is all about continental drift theory. So if continental drift theory comes in your exam in the mains, then you can write all these points in pointers, or if question comes in your prelims, in that case also you must be able to tell that which forces were talked by Wagner and which were not, the evidences that were given and the evidences that were not given. You must be clear about those. In that case you will be able to easily tell about the continental drift theory. So one achievement of this theory was only that it was talking about the drifting of continents. Otherwise, before him, nobody was talking about the drifting of the continents. So the further theories which came following this continental drift theory, they all came based on this basic premise that the continents were drifting. That you must know and remember also. Okay, now we will move to another theory, that is sea floor spreading theory. समुद्रीय तल का बढ़ाव, समुद्री तल का बढ़ना, उसके बारे में हम बात करें। एक मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। ठीक है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी
इसमें क्या बात हो रही है, तो इसमें बात हो रही है समुद्री नितल की। ठीक है, तो पहले हमने देखा, पीछे क्या देखा हमने, महाद्वीपों के बारे में देखा सारा, कि किस तरीके से अलग अलग जो महाद्वीप है उनमें विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि समुद्र तल की बात हुई। तो ये जो था, ये एक महत्वपूर्ण भाग था, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी, सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, सागर नितल प्रसरण। ठीक है, सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। ठीक है, तो पिछले चर्चा में जब ये आया, तो क्यों आया चर्चा में, कि पिछले जो 19 मिलियन वर्षों के जो आंकड़े थे, उनके आंकड़ों का अध्ययन किया गया, और इनके अध्ययन के बाद ये पाया गया कि जो सागर का नितल है उसका प्रसरण हो रहा है। ठीक है, प्रसरण मतलब स्प्रेडिंग हो रही है, फैल रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे इनमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो जब आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध में बहुत सारी जो आपकी पनडुब्बियां थी, अलग अलग देशों ने पनडुब्बियां भेजी अलग अलग देशों के में युद्ध के लिए, तो वो सब समुद्र की गहराइयों में से होती हुई गई। तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र का नितल है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे सपाट बना हुआ है। उन्होंने पाया कि यहाँ पर भी कई ऐसे ऊपर नीचे अलग अलग भू आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, उन भू आकृतियों का अध्ययन किया गया, और उन अध्ययन भू आकृतियों के अध्ययन के बाद पाया गया कि जो कटक हैं पृथ्वी के समुद्र के अंदर, वहां पर भी कई तरीके के कटक हैं, कई तरीके की पहाड़ियां हैं, कई तरीके की पहाड़ियों की श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो जब शोधकर्ताओं ने समुद्री जो आपका क्रस्ट थी, क्योंकि पृथ्वी को अगर आप देखो तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारा महाद्वीप है, फिर यहाँ समुद्र आ गया। ठीक है, फिर महाद्वीप आ गया, तो ये हो गया महाद्वीपीय भूप्रपट्टी, और ये हो जाएगी महासागरीय भूप्रपट्टी। तो यहाँ पर अलग अलग स्थलाकृतियां आपको यहाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन जगहों पर स्थलाकृतियां मिली, और पहाड़ जो पृथ्वी के महाद्वीपों के ऊपर वो तो है ही। तो उन्होंने पाया कि समुद्री क्रस्ट पर भी चट्टानों में एक चुंबकीय रिकॉर्ड का अध्ययन करा उन्होंने, और उसकी गणना की गई कि पिछले 19 मिलियन सालों में कितना समुद्र का जो क्रस्ट है, भूप्रपट्टी, वो बनी पिछले 19 मिलियन ईयर्स में, कितनी समुद्र की वो बनी। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने देखा कि जो समुद्र की जो क्रस्ट है, जो उसका नितल है, ये पार्ट जो है, इसमें क्या है, इसमें बेसाल्ट की चट्टानें मिलती हैं देखने को। ठीक है, बेसाल्ट की, और इन बेसाल्ट की चट्टानों में हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है, तो हमें इसमें चुंबकीय गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, चुंबकीय गुण इसमें विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पृथ्वी के भीतर से जो मैग्मा निकला, सतह पे पहुंचा, तो क्रस्ट के बनाने के लिए वो ठंडा हो जाएगा, और जो चट्टान है वो किसकी, पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का, उसके चुंबकत्व से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये इनके बारे में उन्होंने इसका पढ़ा, देखा। ठीक है, तो अभी भी जो समुद्री महासागरीय कटक हैं, जिन्हें हम मिड ओशनिक रीजेस बोलते हैं, ये लगभग लगभग पूरे समुद्र में, पृथ्वी पे
84,000 किलोमीटर लंबे हैं। सबसे बड़ा जो महासागरीय कटक जो देखने को मिलता है वो है मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज है पृथ्वी के ऊपर, लगातार बनी हुई है। नॉर्थ अमेरिका से ऊपर से स्टार्ट होती है और दक्षिणी अमेरिका तक नीचे देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर जो एक मुख्य बात है आपको याद रखने की कि जो कटक हैं, जो रिजेस हैं, ये सेंटर में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है? जो दो अलग दिशा में चल रही होती हैं और बीच में फिर जगह खाली हो जाती है। जहां पर बीच में जगह खाली होती है वहां से नीचे से मैग्मा बाहर आता है और नए समुद्री मैदान का निर्माण कर देता है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी जगह थी जहां पर हमें क्या गर्त देखने को मिलते हैं, ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, गर्त क्या है? एक बहुत गहरी खाइयां होती हैं जो कहीं ना कहीं 8 से 11 किलोमीटर गहरी हैं, जो समुद्र का तल है उससे ज्यादा गहरी हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समुद्री तल है, तो यहाँ से लगभग लगभग अगर खाई बनी हुई है इस तरीके से, तो ये 8 से 11 किलोमीटर की गहराई तक ये खाइयां हमें गर्त जिन्हें बोलते हैं देखने को मिलता है। आपने सुना होगा एक गर्त का नाम, मेरियाना गर्त, जिसे मेरियाना ट्रेंच भी बोला जाता है। मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो लगभग लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, इतना गहरा है समुद्र तल से। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ा। तो बाद में तो फिर और जो है जब डिस्कशन हुआ था बाद में और लोगों ने जब साइंस वैज्ञानिकों ने पढ़ा तो उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं एक सबडक्शन जोन होता है। ठीक है, और वो सबडक्शन जोन का मतलब होता है जहां पर महासागरीय नितल जो है क्षेत्र वो नीचे चला जाता है पृथ्वी के भीतर। ठीक है, तो सबडक्शन जोन का दूसरा एक नाम है, उसे हम बोल देते हैं निम्न स्खलन क्षेत्र। ठीक है, तो ये निम्न स्खलन क्षेत्र में सबडक्शन जोन में विलीन हो जाती है। कैसे? जहां पर दो अलग अलग चट्टाने, या आप बोल सकते हैं दो अलग अलग प्लेटें, महासागरीय प्लेटें या महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगी, तो उनमें से एक प्लेट टकरा के नीचे की तरफ चली जाती है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर रह जाती है। जो नीचे चली गई वो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर जाके विलीन हो जाएगी। ठीक है, और मेंटल में नीचे फिर गर्मी होती है, उसमें भी पिघल जाती है, फिर फैल जाती है। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलते हैं नीचे। तो ये सब उन्होंने कंसेप्ट जो थे वो इस थ्योरी के अंदर उन्होंने दिए। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे अभी। इस तरीके का ये डायग्राम बना हुआ है इसमें। ठीक है, ये भी आगे देखेंगे, इसको समझेंगे कि क्या है ये डायग्राम, कैसे, अभी बाद में समझाता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो इसको बनाया गया, जिसको इसके बारे में जो बात की गई वो 1960 के दशक की बात है, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1945 में खत्म हो गया था। ठीक है, और काफी ज्यादा जो भी इस दौरान पनडुब्बियों ने, समुद्री जहाजों ने, उसमें बैठ के कई वैज्ञानिक जाते थे और वो समुद्र की गहराइयों के बारे में, नितल के बारे में, अलग अलग बारों में उस समय पे भी ज्ञान लेते रहते थे, देखते रहते थे, बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट लगा देते थे और जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो उनका अध्ययन करते रहते थे। ठीक है, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक भूवैज्ञानिक था, उसका नाम था हैरी हेस। ठीक, तो हैरी हेस ने ये सागर नितल प्रसरण की परिकल्पना स्थापित की और इसमें उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी के जो मेंटल से बेसाल्ट का जो मैग्मा है, जो लावा है, वो बाहर आता है और जब ऊपर आता है तो ठंडा हो जाता है और ठंडा होके नए समुद्री नितल की का निर्माण करता है, जिन्हें हम मध्य सागरीय कटक बोलते हैं। ठीक है, रिजेस मतलब कटक, पहाड़ी नुमा आकार, समुद्री पहाड़। कटक मतलब समुद्री पहाड़। ठीक है, ये उन्होंने बताया। ये उन्होंने आगे बताया कि इस कटक के दोनों दिशा में, दोनों साइड जो समुद्री नितल है, समुद्री तल है, वो
घूमता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। और एक तरफ आपको गहरी खाइयां देखने को मिलती है, जहां पर एक समुद्र का पार्ट जो है, जैसे ये है, ये नीचे धस जाएगा और ये पार्ट ऊपर रहेगा। ये होगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, और एक ऐसी जगह होगी जहां पर दोनों एक दूसरे से दूसरी दिशा में जाएंगी। तो यहाँ से लावा बाहर आके ठंडा करके यहाँ पर नई समुद्री तल का निर्माण करता रहेगा। धीरे धीरे यहाँ और बढ़ती, ये आगे बढ़ जाएंगी, ये आगे बढ़ जाएगी, और यहाँ पर नई लावा आएगा और ठंडा होके यहाँ पर जमता जाएगा, और नए समुद्र तल का निर्माण करता रहेगा, ठीक है। तल का निर्माण, तो इसका उन्होंने उदाहरण दिया। और जब उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाई की, उसके बारे में जांच परख की, तो उसके आधार पर उन्होंने फिर समुद्री कटकों के बारे में पढ़ा, और इन कटकों की जो चट्टानें थी, चट्टानों के गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा, चुंबकत्व के बारे में पढ़ा, ठीक है। इनमें भी जो चुंबकत्व है वो कैसा है, और इसके आधार पर उन्होंने परिकल्पना दी थी, ठीक है। तो इनके जो सबूत हैं, इनके जो प्रमाण हैं, उनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं महासागरीय निम्न तल के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक था एज ऑफ द सी फ्लो, समुद्री तल की आयु, ठीक। समुद्री तल की आयु के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो समुद्र तल की जो आयु है वो भी समुद्र तल के प्रसरण के समर्थन में है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब ये समुद्र तल का प्रसरण होता है, तो जो सबसे नई समुद्री तल की जो परत बनेगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कटक के नजदीक पाई जाएगी। मान लीजिए ये इस दिशा में जा रही है, एक भूपरपटी एक दिशा में जा रही है, नीचे से ज्वालामुखी फटा, लावा निकला, लावा ऊपर समुद्री तल के पास आया, पानी में ठंडा हुआ, और एक नया समुद्री तल बन गया। तो जब ये समुद्री तल बना, तो ये जो मध्य में इसके जो भी चट्टानें पाई जाएंगी, वो सबसे नई होंगी, और जो दूरी पे पाई जाएंगी वो थोड़ी पुरानी होंगी। तो जितनी दूर हम इस समुद्री कटक के, महासागरीय कटक से दूर जाएंगे, उतनी ज्यादा पुरानी चट्टानें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आगे क्या होता है, बनती बनती आगे चली जाती हैं, और मान लीजिए यहाँ से दूसरी चट्टान भी आ रही है, तो धीरे धीरे ये टकराएगी आके, और जिनमें से जो भारी चट्टान होगी वो एक नीचे धस जाती है। तो नीचे धसने के बाद फिर ये टूट भी जाती है, पिघल जाती है पृथ्वी के भीतर जाके। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो समुद्री तल है वो खत्म भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है, ड्यू टू सबडक्शन, धंसने की वजह से। और इस वाली बाउंड्री पे बनता रहता है। तो इस प्लेट को, बाउंड्री को बोलते हैं कन्वर्जेंट, इस वाली को बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज करने वाली, दूर अलग अलग दिशाओं में जाने वाली। कन्वर्जेंट मतलब दोनों एक ही दिशा में टकराने वाली, एक दिशा, दोनों एक ही पॉइंट पर आने वाली और आपस में टकराने वाली बाउंड्री। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है, नया समुद्र तल बनता है। कन्वर्जेंट पे जो भी भूपरपट्टी बनी वो टूट के एक पार्ट जो धस जाता है वो उसमें विलीन हो जाता है, तो वो खत्म भी होता रहता है। इस प्रकार क्या होता है, समुद्री तल के प्रसरण में लगातार एक बनावट बनी रहती है, ठीक है। तो एक उन्होंने ये आपका पहला एक प्रमाण रखा, और इस प्रमाण के आधार पर उन्होंने बताया कि समुद्र तल बढ़ रहा है, ठीक है, फैलता जा रहा है धीरे धीरे, इसमें नई नई चट्टानें बाहर आके ठंडी होके बनती जाती है, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने बोला कि जब पेंजिया महाद्वीप का जब खंडन हुआ,
जब उसका विभाजन हुआ तो जैसे जैसे वो टूटता गया पेंजिया, नए नए महासागरीय बेसिन निर्मित होते गए और धीरे धीरे जो भी टूटे हुए महाद्वीप थे, जो भी खंडित महाद्वीप थे, वो एक दूसरे से टकराने भी लगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप भारत और यूरेशिया को देख सकते हैं। तो भारत और यूरेशिया और इधर आपका अरब का प्रायद्वीप जो है, और यूरेशिया के साथ साथ अफ्रीका और यूरेशिया के बीच में भी जो विभाजन हुआ, ठीक है, तो ये हमें सब देखने को मिला। इन सबको हम बोल देते हैं कि ये सब पेंजिया जो है, ये महाद्वीप के विभाजन और उनके फैलाव के परिपक्व चरण, मैच्योर स्टेज जो बोलते हैं, उसका परिणाम है। ठीक है, इसके बारे में बात हुई। दूसरा था मैग्नेटिक एनोमलीज। ठीक है, मैग्नेटिक एनोमलीज का मतलब क्या था कि जो चुंबक है, चुंबकत्व था पृथ्वी का, जो चुंबकीय जोन है, जो उसका बल है, उनमें क्षेत्रों में अलग अलग हमें दृष्टिगोचर होता है, एनोमलीज देखने को मिलती हैं, अलग अलग देखने को मिलती हैं। ये सभी जगहों पे एक जैसा हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों कि कुछ जगहों पे आपको वहां पर मैग्नेटिज्म अलग मिलेगा और कुछ जगहों पे मैग्नेटिज्म अलग देखने को मिलेगा। तो उसका जो उन्होंने कारण बताया उसको हम आगे देखते हैं अभी। तो उसके अंदर क्या है, पहला कि मैग्नेटिक सर्वे हुए। ठीक है, जो भी समुद्री नितल था उसका सर्वे किया 1960 में, और उन्होंने बताया कि वहां पर हमें एक सिमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल पैटर्न कैसा, ऐसा, इस तरीके से, जैसे जेब्रा की स्ट्रिप होती हैं, उनमें इस तरीके के हमें मैग्नेटिक बैंड्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग बैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेट मध्य सागरीय जो कटक थे, उनके चारों दोनों तरफ हमें देखने को ये मिलता है। हर अलग अलग समुद्रों में अलग अलग तरीके से ये हमें इनका चुंबकत्व जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों का एक जैसा चुंबकत्व है, इन दोनों का अलग है, इन दोनों का अलग है, इन दोनों का अलग है। ठीक है, तो ये हो गई एक, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी। इस तरीके से पहली, यहाँ पर होगी दूसरी, तीसरी, चौथी, ये अलग अलग चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बात की कि जो चुंबकत्व की धारणाएं थी, मैग्नेटिक जो अनोमलीज थी, ठीक है, इनको हम चुंबकीय विसंगति बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय विसंगतियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमें मैग्नेटिक रिवर्सल के साथ मैच करती हुई दिखती हैं। मैग्नेटिक रिवर्सल का मतलब क्या हो गया कि जो चुंबकीय उत्क्रमण हो गया। ठीक है, ये चुंबकीय उत्क्रमण क्या है, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक रिवर्सल। तो ये क्या था कि इन्होंने बताया कि जैसे कि ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। तो इसका एक, ये तो हो गया जो हमारा ज्योमेट्रिक एक नॉर्थ और साउथ है। एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक होता है मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, ये जो होता है, ये जो मेन आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ है, उससे भिन्न होता है। तो आज का ये नॉर्थ हमारा और आज का साउथ ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये धीरे धीरे समय के अनुसार बदलता रहता है।
ये ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ समय बाद फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, यहाँ मैग्नेटिक साउथ हो गया, यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, यहाँ मैग्नेटिक साउथ हो गया, और कुछ समय बाद ये बदल के ऐसा भी हो सकता है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया, और फिर आज की पोजीशन में दोबारा आ सकता है। तो जो ये आपका चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, ये अपने स्थान पर एक नहीं स्थायित्व तो नहीं रहता है इसका, ये बदलता रहता है। तो इसके जो ये बदलाव है, ये दोनों कहीं ना कहीं मैच करते हैं। तो जिस जिस तरीके का, जिस समय में, जिस वर्ष में जैसा भी ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होगा, उसी के आधार पर इन चट्टानों का भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। आपने देखा होगा कभी, आप किसी चुंबक को लें, दो चुंबक की छड़ें लें, तो आप देखेंगे कि इनका नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, और अगर आप दोनों साउथ साउथ को मिलाएं तो मिलते नहीं है, नॉर्थ और साउथ आपस में मिलते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस चुंबक के अंदर दक्षिणी वाला, उत्तरी वाला चुंबक चुंबक चुंबकीय प्रभाव कैसा है, किस तरफ है। तो ऐसे इन चट्टानों में मिला देखने को। तो ऐसा मान लीजिए कि जो ये मध्य वाली चट्टान है, ये दोनों, इनका, ये आज क्योंकि सबसे नजदीक है समुद्री कटक के, तो इनका जो ध्रुवीय संगत है, वो ध्रुवीय संगत आज के ध्रुव के आधार पर है। तो आज हमें मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इस दिशा में देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी इसका नॉर्थ ऐसा होगा और इसका साउथ ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो चट्टान है, ये जब हुई, जब इसमें से लावा निकला होगा और लावा जब ठंडा हुआ होगा, तो पृथ्वी का साउथ ऊपर हो, नॉर्थ नीचे हो। तो कहीं ना कहीं इसका साउथ और इसका नॉर्थ इस तरीके से उल्टा बना हुआ है। तो इसके आधार पर हमें क्या पता चल जाता है, इस चट्टानों से तो हम पता लगा लेंगे कि उसकी आयु कितनी पुरानी है। ये देखा था ना, एज ऑफ सी फ्लोर। तो चट्टानों के आधार पर हमने उसकी आयु पता लगा ली, और उस आयु से हमने पता लगा लिया कि कितने साल पहले पृथ्वी का भी जो है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव बदला हुआ होगा, ये किस दिशा में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर ये चट्टानों में, इनकी जो समुद्री नितल है, जो इसकी चट्टाने हैं, इनमें हमें चुंबकीय विसंगतियां देखने को मिली। तो ये चुंबकीय विसंगतियां हमें बताती हैं कि इसका मतलब है कि जो समुद्र का नितल है, से बढ़ता जा रहा है, ये बदलता जा रहा है, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये साउथ नॉर्थ ऐसा ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है कि यहाँ नॉर्थ दिख रहा हो, यहाँ साउथ दिख रहा हो, या ऐसा भी इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन इन सारी चट्टानों में हमें विसंगतियां देखने को मिलती हैं, और ये विसंगतियां हमें बताती हैं कि पृथ्वी के समुद्र का जो नितल है, वो समुद्री नितल बढ़ रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रमाण हमें उनका जो हैरी हेस ने दिया, ठीक है, वो हमें इसमें देखने को मिलता है। कुछ और भी उन्होंने इसके उदाहरण दिए हैं, जैसे कि इन चित्रों में आप देख सकते हैं, पहला चित्र है, फिर दूसरा चित्र है, फिर तीसरा चित्र है। तो यहाँ पर तो आपको नॉर्मल देखने को मिल रहा है, इस चित्र में नॉर्मल मैग्नेटिज्म है। और यहाँ पर क्या हुआ, जब ये वाली परत आगे बढ़ गई, ये परत यहाँ आ गई, और यहाँ पर नई परत आ गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स मैग्नेटिज्म हो गया, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ,
अगर इसका नॉर्थ और साउथ था तो इसका साउथ और नॉर्थ में देखने को मिल रहा है। फिर आगे और जो है बढ़ा, अब जो निकला फिर इसका वापस से हम देखेंगे तो हो सकता है इसका नॉर्थ और इसका साउथ ऐसे ही हो जैसे कि नॉर्मल होता है। तो ये जो है ये दिखा रहा है कि किस तरीके से देखो समुद्र का जो नितल है वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके आधार पर हम देख लेते हैं कि नया समुद्री तल कैसे बनता जा रहा है, और वो हमारे मध्य सागरीय कटक के पास से फैलता जा रहा है। तो मध्य सागरीय कटक ये जो बीच में है आपका, ये पूरा जो क्षेत्र वैसे तो कहलाएगा, ये क्या है आपका मध्य सागरीय कटक कहलाएगा। ये बनता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है, जो ये बात आपको मैंने बताई यही यहाँ पर लिखी हुई है, और इस आधार पर हमने देखा, इन्होंने जब वैज्ञानिकों ने जांचा तो उन्होंने ये पाया कि जो समुद्री तल है वो मध्य सागरीय कटक से फैल रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, ये पता कैसे लगाया हमने, आज सैटेलाइट आ गई है तो उनके मेजरमेंट से, रडार के मेजरमेंट से हम पता लगा लेते हैं कि कितना तेजी से डिस्टेंस हो रहा है। ये तो आज की बात है, लेकिन उस समय पे उन्होंने ये थ्योरी में बताया कि सी फ्लोर जो है वो फैल रहा है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए बताया गया है कि इफ इट इज ए नॉन दैट सेगमेंट ऑफ सी फ्लोर दैट हैज बीन फॉर्म्ड 10 years million year ago, 10 मिलियन साल पहले जो बना होगा, वो आज जो महासागरीय कटक है उसके बीच से लगभग 50 किलोमीटर दूर चला गया होगा। तो इसके आधार पर हम आराम से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका मतलब प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से समुद्र का तल फैलता गया होगा। ठीक है, तो इसको हम उपयोग करते हुए क्या देते हैं, पैलियोमैग्नेटिक रिवर्सल। इस जो टर्म को जो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर, ये जो उदाहरण देखिए यहाँ पर बताया, ये पूरा आपको इसको बोल देते हैं पैलियोमैग्नेटिक रिवर्सल। जो वर्ड है पैलियोमैग्नेटिक रिवर्सल, और इसके आधार पर जो वैज्ञानिक है वो क्या कर सकते हैं, जो समुद्र का जो नितल है उसकी आयु का मैप बना के ज्ञान कर सकते हैं कि अभी जो है सबसे जो नई यंगेस्ट जो भी समुद्री तल बन रहा है वो कहीं ना कहीं मिड महासागरीय कटक के बिल्कुल नजदीक बन रहा है, और जो सबसे पुराना है वो लगभग 150 से 200 मिलियन साल पुराना है, कहीं ना कहीं जुरासिक एज का है। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत तुरंत फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है और रोज हमें लावा देख के नया समुद्र बनता जा रहा है, ऐसा नहीं, बहुत धीमे होता है प्रोसेस, क्योंकि पृथ्वी की आयु के हिसाब से वो चलता है, धीमे धीमे होता है, हमें तो पता भी नहीं चलता, कई लाख साल लग जाते हैं तब जाके इस तरीके की चीजें में बदलाव आता है। लेकिन हाँ, ये बदलाव आता है, ये बदलाव हो रहा है, इसके बारे में हमने काफी ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है, कई सारे आंकड़े हमारे पास है। ठीक है, तो कि जब बहुत सारे चट्टानों के जो सैंपल हमने लिए समुद्र के तल से, तो और जब उनकी जांच की, उनकी आयु निकाली चट्टानों की, तो पता चला कि हाँ इन चट्टानों की आयु अलग अलग है और कई कई साल का अंतर भी इनमें देखने को मिलता है। फिर एक और जो उन्होंने उदाहरण दिया या प्रमाण दिया वो था सीस्मिक स्टडीज का। सर एक मिनट फिर से स्लाइड ओपन करिएगा हिंदी वाली। जी, चलोगे अभी क्लास में हूँ, कब जाओगे, आधे घंटे बाद। तो जा, हो गया सर। क्या कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ यू कैन गो। ओके, सीस्मिक स्टडीज एक अनदर प्रूफ था। तो इसमें उन्होंने बताया, जो उदाहरण दिया वो ये था कि जो जब हमने भूकंपीय तरंगों के बारे में अध्ययन किया, तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के बाद हमें पता चला कि जो भूकंप आता है
वो हमें देखने को मिलता है कि जब जहाँ पर भी खाइयां बनी, जहाँ पे भी मध्य सागरीय कटक बने, ठीक है, और वहां पर जहाँ पर भी इस तरीके के दरारें आई हैं पृथ्वी के बीच में, वहां पे भूकंप देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो रिफ्ट वैली बनती है और वहां जिसकी वजह से जब भूकंप आता है, तो वहां वो कहाँ पे होता है, वो होता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या उनको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के पास। ये कैसे होती हैं, मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, और ये एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, ठीक है। तो इसकी दिशा इस तरफ है, और इसकी दिशा इस तरफ है। तो ये इनमें क्या होता है, इनमें आपस में घर्षण होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये घर्षण होगा और यहाँ पर चट्टानें टूटेंगी, हटेंगी, कटेंगी, और यहाँ पर भूकंप आएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर ओनली एरियाज अलोंग द फ्रैक्चर जोन इन विच सेक्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट पास वन अनदर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर ही एक दूसरे से विपरीत दिशा में एक दूसरे को सट के घर्षण करती हुई जाती है। तो यहाँ पर भी हमें काफी ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है हमें कि ओशन की क्रस्ट जो है वो मिड ओशनिक रिज से दूर जा रही है, घूम रही है वहां से, ठीक। इसके बारे में पता चलता है कि एक चट्टान दूसरी चट्टान से मिलके घर्षण करती जा रही है, कुछ अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और कुछ जो है एक दिशा में भी आ रहे हैं। तो पूरा मूवमेंट का हमें पता चला, और नए समुद्री तल का निर्माण का पता चला, ठीक है। तो इस तरीके से भूकंपीय अध्ययन भी जो है इसमें बहुत बड़ा सहयोगी रहा, कि अलग अलग चट्टानें जो हैं, अलग अलग महाद्वीपीय चट्टानें वो अलग अलग दिशा में जाती हैं, और नए समुद्र का निर्माण होता है एक तरफ, और एक तरफ उस जो निर्मित समुद्र की जो चट्टानें हैं वह टूटती भी रहती हैं जब दो चट्टानें दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा आज की मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो 1960 के दशक में जब 1915 के आसपास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, and next one was sea floor spreading theory. So these two theories were supported by reliable scientific data, and then they helped in the development of modern plate tectonic theory. तो आज जो भी हम कुछ जानते हैं पृथ्वी के भीतर पृथ्वी की प्लेटों के बारे में, और जो अलग अलग भिन्न भिन्न हमारे स्थलाकृतियां पृथ्वी के ऊपर बनी हुई हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो सब हमें किससे पता चला, आज की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उससे पता चला, ठीक है। ये सारी हमें बताती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमने पृथ्वी के भीतर का भी काफी ज्ञान ले लिया, जिसमें हमें पता चल गया कि पृथ्वी के भीतर की जो परतें हैं वो सारी परतें अलग अलग हैं, कई परतें हैं, उन परतों की विशेषताएं भी भिन्न हैं। हमारा जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है ना, भूपर्पटी, वो अलग है, एस्थेनोस्फीयर अलग है, मेंटल अलग है। मेंटल के भी दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। कोर भी है, बाहरी क्रोड है, आंतरिक क्रोड है, उनकी विशेषताएं अलग हैं, उनमें पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीजें जो हमें पता चली, इनसे हमने फिर आज की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके बारे में हमने बात करेंगे। तो आज ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थोड़ी सी लंबी चलेगी, बड़ी होगी, तो इसे हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो ये आपकी 3 जो थ्योरी हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी। इन थ्योरी से जुड़ा हुआ कोई आपका अगर प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, जो फिर हम अगली क्लास में इससे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ अश्विन जी, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है आपका तो फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ, जिसे हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी बोलते हैं।
धन्यवाद। थैंक यू सर।